So after a great discussion with Aman Mansita, I get to know quite an insights about what mustard oil is and mustard oil, कच्ची कहानी, प्रीमियम, ओरिन प्रेस, कुल मिला के ये सब कुछ एक ही कहानी बोलते हैं. That it is just a seed from which oil is derived. There is no rocket science behind it, but yes, other iteration, mixing, duplicacy is there in every phase. And हमारे जैसे गेस्ट ने दिखाया भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन विद हिज प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड ऑन कैमरा कि कैसे एक पैकेट खोल करके या फिर एक बॉटल से यू कैन चेक दैट इज दिस ओरिजिनल और नॉट, इज देयर एनी एडल्ट्रेशन और नॉट. एंड ये बाकी के एडिबल ऑयल्स में नहीं है. टू बी फैक्ट एनी रिफाइंड ऑयल्स इज नॉट हैविंग दैट. आई मे बी रॉन्ग, he may be wrong. But yes, this is your duty to know about it. This is the awareness that I would spread through this podcast. And Tastekeep is not just one brand I'm promoting or I'm doing a podcast, but I'm doing this podcast to spread the awareness in the entire industry of edible oil that yes, people should know what they're eating, people should know what they're putting in their body and how it is going to save them and react in future. So stay tuned for more such podcasts. We'll be doing a series of podcasts coming back again on camera. This is Ravi Khaitan signing off. Thank you. Why did you choose this mustard oil? Mustard oil is something not started by me in my company. Okay. It was started from my grain business. Because at that point of time, mustard oil is something जो लोग एक्चुअल में अच्छा खाना चाहते थे. बहुत बार ये भी देखा है कि एकदम लाइट येलो और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखता है. So that's a process. That's a deodorization process. It goes through. ऐसा ही गाना है. Basic fact of mustard oil जो कि बहुत जनता नहीं जानती है. हाँ. Refined oil is there. Olive oil is there. Palm oil भी है. अब avocado oil भी है. जी जी. फिर मस्टर्ड ऑयल अपनी जगह कैसे मेंटेन कर रहा है? इसका कोई ऑल्टरनेटिव अभी वाइडली अवेलेबल नहीं. इट्स अ गार्निशिंग ओवर एवरी गुड मील. आपने बिजनेस फिर कब स्टार्ट किया? 2018 Jan 27 I remember when we launched Tasting as a brand of mustard oil. अच्छा प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे हमेशा बिके. हाँ वो तो है. In India particularly Indian market is always open for good products at good rates. मतलब it is very tough to make good products at very good rates. But if you can achieve it, फिर तो you can disrupt the market. जैसे मुझे लगता है वाइडली जनता को इंग्लिश बोलने वालों पे ज्यादा भरोसा होता है. फूड रिटर्न कभी भी ऑयल से रिएक्ट नहीं करेगा. तो रस्टिंग इश्यूज एंड ऑल भी नहीं होते उसमें. देखिए पानी गिर जाएगा, लोहा है तो खराब होगा, लेकिन ऊपर खराब होगा, अंदर नहीं होगा. लोगों को श्योरिटी ऑफ प्योरिटी चाहिए. श्योरिटी ऑफ प्योरिटी चाहिए. लोगों को जब तक श्योरिटी नहीं मिलेगी कि हाँ मैं जो यूज कर रहा हूँ वो प्योर है. तो हाउ डू यू टेंड टू गिव श्योरिटी? वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड. तो आपका मोटो क्या है बिहाइंड दिस लॉन्च? Behind this launch, simply and so today we have a guest, an important guest to be because ये हमारे client भी है, recently accolade हुए, and a very good and positive energy that I get from him. So without further delaying, let's get started. He's Aman Mansingha from Mansingha Agencies, and honestly, when I got an inquiry from you, I was on my way to Ayodhya. जैसे आपसे बात हुई थी. And I feel that I wanted someone from FMCG, and that was the connection, a signal from the God कि you are coming to me and I am giving you a client. I feel always in destiny. I believe in destiny. So आपको when you started off with this agency work or this mustard oil work, तो आपको क्या लगा? Will mustard oil work for you, or why did you choose this mustard oil path? So basically, first of all, I would like to tell you that mustard oil is something not started by me in my company. Okay. It was started from my grain business. अच्छा. It is a way of prolonged business in our family. It's a family business, you can say. मतलब पहले दादाजी ने किया, फिर पापा ने किया. Now legacy है. It's a legacy. So पापा ने मैन्युफैक्चरिंग बहुत पहले ही चालू कर दी थी. फर्स्ट उन्होंने पैकिंग चालू की. उस समय सादे टिन में माल गिरता था. बहुत पुरानी बात हो रही है. देन
मस्टर्ड ऑयल मार्केटिंग रहता था। हाँ, फिर मस्टर्ड ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग चालू की, एंड स्लोली when I came back from my college in 2017, so that time I was trying to pursue MBA. I was trying to clear my CAT with a good percentile, and I wanted to do my कहाँ है आप एमबी के? मैंने किया नहीं। अच्छा ओके, यू आर परसुइंग इट। Yeah, I was pursuing, and मैं आता था ऑफिस, बैठता था, उस समय इतना इंटरेस्ट नहीं। हाँ। स्लोली स्टेडली आई डोंट नो हाउ थिंग्स टर्न पॉजिटिव। मेरे को आइडिया आया, मैं और मेरे भैया हैं, हाँ। हम लोग को आइडिया आया टू लॉन्च अ ब्रांड इन मस्टर्ड ऑयल कैटेगरी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मस्टर्ड ऑयल इज समथिंग जो लोग एक्चुअल में अच्छा खाना चाहते थे, लेकिन मिलता नहीं था, और मिलता भी था तो बहुत हाई प्राइस पे मिलता था। मतलब द प्रीमियम दैट दे हैड टू पे टू बाय अ गुड ऑयल, वो सबके बस की बात नहीं थी। ओके, Still, if you know, so what is the definition of a good oil? see, pure. हाँ। First, good oil should be pure. हाँ। Good oil का मतलब ये कभी नहीं होता कि very high pungent, मतलब एक होता है ना, लोग बोलते हैं अरे देखिए ज्यादा छान। हाँ, so that's एक बोलते हैं इसका रंग अच्छा है, कुछ बोलते हैं कि देखिए ये ऐसा ही गाना है। बेसिक फैक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल जो कि बहुत जनता नहीं जानती है, हाँ। कि मस्टर्ड ऑयल का एक्चुअल कलर इज ग्रीन। अच्छा, येलो नहीं है? येलो नहीं है, वो ड्यू टू द पैकेजिंग एंड द टाइम टेकन टू टेक आउट द ऑयल, एंड वो जितना सनलाइट में रहता है उसमें न्यूट्रिशन या विटामिन जो होते हैं उससे वो थोड़ा येलो दिखता है। उसका एक्चुअल कलर डार्क ग्रीन है। डार्क ग्रीन है? डार्क ग्रीन। जब आप एक सेम ऑयल को आप अलग अलग डेंसिटी की वजह से, डेंसिटी की वजह से, क्योंकि जब आप नॉर्मल तेल हाथ में लेते हो मस्टर्ड ऑयल, मतलब हम तो वो पीला दिखेगा। देसी आदमी तो बालों में भी लगाते हैं कभी कभी, तो वो पीला ही दिखता है। जी, वो एकदम येलो दिखेगा व्हेन इट इज टेकन इन अ वेरी लेस क्वांटिटी। जैसे बहुत पीला दिखेगा, व्हाइट चीज व्हाइट ही दिखेगी, लेकिन आप अगर लाइट ब्लू कलर को पे लाइट ब्लू डालते जाओगे टेंस हो जाता है। दैट्स द सेम थिंग जब येलो, क्योंकि उसमें वाई आर एंड ग्रीन जी पाया जाता है, सारे ऑयल्स में पाया जाता है ये। उसको ये क्या होता है? these are three colors found in edible oil sector. Okay. YGR. YGR is yellow, green and red. Yellow, green and red. Yeah, okay. इस कलर पैलेट में ये तीन कलर ही ज्यादातर एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल्स पे। हाँ, ऑलिव ऑयल में ऑब्वियसली ग्रीन होता है, ग्रीन वाला है सब। यस, ठीक है। और क्रूड ऑयल्स जो होते हैं जिससे कि एक्सट्रैक्शन होता है रिफाइंड ऑयल का, वो ज्यादातर रेड में होते हैं, ब्लैक में होते हैं। करेक्ट, हाँ, ब्लैक में होता है। हाँ, बस जिससे कि टर्न होता तो है, उससे फिर वो रिफाइंड होकर इसी रिफाइंड ऑयल बहुत बार ये भी देखा है कि एकदम लाइट येलो और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखता है। So that's a process. That's a deodorization process. It goes through. तो मतलब there is a also, मतलब मैं एक जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूँ कि रिफाइंड ऑयल इज देयर, ऑलिव ऑयल इज देयर, पाम ऑयल भी है, अब एवोकाडो ऑयल भी है। जी जी। फिर मस्टर्ड ऑयल अपनी जगह कैसे मेंटेन कर रहा है? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए कॉर्डलेस था, टेलीफोन्स थे, फोन आ गया, वेरेबल डिवाइसेस आ गए, इट इज ऑलमोस्ट बिन रिप्लेस्ड। सो व्हाई इज द मैटर कि मस्टर्ड ऑयल का रिप्लेसमेंट नहीं है, या फिर इंडस्ट्री में इसकी जगह नहीं है? देखिए, रिप्लेसमेंट नहीं है इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेटिव अभी वाइडली अवेलेबल नहीं है। रीजन ये, आज ऑलिव ऑयल है, इट्स नियर टू 600 to 800 rupees a liter. Okay. Mustard oil 150 to 200 rupees a liter, which is a very big difference of pricing for a consumer. आप आज 150-200 रुपए में 1 लीटर तेल लेते हो, जो कि आप अगर छोटी न्यूक्लियर फैमिली हो तो आपका 1 महीने चल जाता है, और अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप 5 लीटर तेल ले लेते हो, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं लगता है। अब अगर हम लोग ऑलिव ऑयल का 5 लीटर तेल लेंगे तो 2000 रुपए का डिफरेंस आएगा, which is a big impact on a person who is earning 20 to 30,000 rupees a month. Correct. और ये जो difference है, it will always last for mustard oil because of the cultivation in India itself. It's a domestic. अच्छा, मस्टर्ड ऑयल मैंने ये देखा है कि मोस्टली इंडिया में कंज्यूम होता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्टेड है। हाँ, बहुत सारी कंट्री कितना मार्केट है एक्सपोर्ट का? डू यू थिंक कि मतलब इंडिया से ज्यादा कम कंजम्पशन है? नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, कंजम्पशन है, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन नहीं है।
मतलब एक्सपोर्ट की डिमांड इज अमेजिंग. It has a very good. See, I'll tell you what. It's a garnishing over every good meal. अच्छा. It can be used as a garnish. हाँ, छोंका जिसको बोलते हैं. It is a garnishing over all the meals you can think of. ठीक है. अब ये आपके ऊपर है, आपके टेस्ट बड्स के ऊपर है कि आप क्या यूज करते हैं. हाँ. इंडियन हैव अ वेरी गुड टेस्ट बड फॉर मस्टर्ड ऑयल. हाँ. हम कुछ लोग घी भी यूज. हाँ, घी भी यूज करते हैं. फैक्ट है. लेकिन अब प्योर घी, प्योर मस्टर्ड ऑयल, getting those kind of products is very difficult in today's market. That's a truth. It's a mere truth. ठीक है. चलो लेट्स गेट बैक टू योर बिजनेस. हाँ, सर. कि आपने बिजनेस फिर कब स्टार्ट किया? मैंने डिसाइड किया रोलिंग कर रहे थे. 2018 Jan 27 I remember when we launched Taste King as a brand of mustard oil. एक्चुअली उस समय तो मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग. इसमें कोई बुराई नहीं है मुझे मानने में. इट वाज जस्ट 27 days ऑफ मी लर्निंग ऑफ व्हाट मस्टर्ड ऑयल एक्चुअली लुक्स लाइक, व्हाट इट इज. एंड हम लोग के पास गॉड फॉरबिड लैब्स थी मैन्युफैक्चरिंग की ऑलरेडी. तो हम लोग ट्रायल एंड टेस्ट करके अपना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जो कि एक्चुअल में कंज्यूमर के हेल्दी हो, टेस्टफुल हो. मेरे लिए वो बहुत बड़ा मैटर था कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा, हेल्दी एंड इन बजट देना है. अच्छा, हेल्दी एंड इन बजट. मेरे को एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मेरे को बोला था ये बात कि अच्छा प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे हमेशा बिके. वो तो है. इन इंडिया पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट इज ऑलवेज ओपन for good products at good rates. Well, it is very tough to make good products at very good rates. Yeah. But if you can achieve it, फिर तो you can disrupt the market. ऐसा मैंने सुना है. You can disrupt the market, but disruption of market in today's world is very different than it was. You can call it like 10 years back. Everybody is successful in their own terms. So success की parameters हाँ बहुत change हो चुके हैं, बहुत different हो चुके हैं. I don't think so that's relevant at all. So there I was at 27th of 2018. Jan 27. Yeah, sir. Jan 27 when I launched. You launched Taste King. Yeah. उस समय की पैकेजिंग बहुत डिफरेंट थी. उस समय की चीजें. Why the name Taste King? क्योंकि मतलब आप बनारस से हो, मैं भी बनारस से हूँ. हिंदी नाम क्यों नहीं? हिंदी नाम क्यों नहीं? इजी हो जाता है. Taste King मतलब what is the relevance? दो रीजन मैं आपको देता हूँ. फर्स्ट, मेरी जो कैटेगरी थी was healthy and tasty. Okay. Basically. And I don't know why इंडिया में टेस्ट ज्यादा बिकता है देन हेल्थ. There are changes coming, लेकिन आज भी लोगों को स्वाद चाहिए, लोगों को टेस्ट चाहिए. So from there came we taste नाम हम लोग यूज कर सकते. And then it came to स्वाद का राजा, something on those lines. मतलब if you come to UP बिहार तो वही है ना. No, in that sense, tasting game. ये मुझे इंग्लिश इसलिए रखना था बिकॉज इट गिव्स अ गुड वाइब. जैसे मुझे लगता है वाइडली जनता को इंग्लिश बोलने वालों पे ज्यादा भरोसा होता. आज अगर आप वही बात इंग्लिश में फटर फटर करो तो लोगों को एक्सेप्ट हो जाती. वो बनारस का या फिर बोल सकते हैं नॉर्थ इंडिया में एक कंसेप्ट अभी भी है, कुछ एरियाज में है अभी. आज हम लोग का मार्केट क्या है देखिए, मैं बहुत ये तो है नहीं क्या है सेल इन ऑल ओवर इंडिया. So I have a very small production unit. Small in my terms, not maybe for the obviously small in my terms in our industry you can say कि एक प्रोडक्शन है, एक सेल पॉइंट है. हम लोग का जितना प्रोडक्शन हम लोग पूरा माल डेली बेच लेते हैं. ओके. हम लोग का प्रोडक्शन बचता नहीं है. सो इट ऑल्सो गिव्स अस वन मोर बेनिफिट कि हम लोग का प्रोडक्ट बहुत फ्रेश है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाता है. सो मतलब हम लोग का बहुत ही मिनिमम स्टॉक करना हुआ करता है. मतलब 2 दिन 3-4. ऐसे तो सेल्फ लाइफ आई डोंट थिंक इज एन इशू विद मस्टर्ड ऑयल. नो 9 months. हाँ. इफ देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं 9 months इज फॉर फूड FMCG थिंग. 9 to 12 months ही हम लोग क्लेम कर सकते हैं. ओके. लेकिन अगर सरसों तेल को अच्छे से पेरा गया हो, कि कोल्ड प्रेस किया गया इन अ गुड क्वालिटी मशीन इन वेरी हाइजीनिक टर्म्स, तो इट कैन लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब वो गर्मी का जैसे इस वक्त अभी सरसों का सीजन होता है, अभी जब सरसों पेरी जाती है तो इट कैन लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम्स, लाइक इवन 2-3 साल बाद नहीं खराब होगा. बट इट शुड बी इन अ वेरी गुड पैकेजिंग. जैसे हम लोग बहुत ही हाई डेंसिटी पॉलीमर में बिलीव करते हैं, HDPE जिसको हम लोग बोलते हैं,
हाई डेंसिटी पॉलीमर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जो उसके अंदर उसे रिएक्ट नहीं करता। हाँ, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है। जैसे पहले के लोग हमेशा टीना यूज करते थे, हाँ, आज भी लोग टीना यूज करते हैं, बट टीना इज द हाईएस्ट मार्केट, लाइक 67% ऑफ द मार्केट आई थिंक मुझे जितना डेटा नियर लास्ट डेटा मोस्टली टीन ही यूज होता है। मोस्टली 10 ही यूज होता है, और एक का डिमांड भी पूरा 10 का ही जाता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है फॉर ऑयल, क्योंकि टिन कभी भी ऑयल से रिएक्ट नहीं करे। अच्छा, फूड ग्रेड टिन कभी भी ऑयल से रिएक्ट नहीं करेगा। तो रस्टिंग इश्यूज एंड ऑल भी नहीं होते उसमें। देखिए, पानी गिर जाएगा, लोहा है तो खराब होगा, लेकिन ऊपर खराब होगा, अंदर नहीं होगा। और आज के टाइम में जहां कंजम्पशन बहुत हाई है, लोगों को अच्छा तेल मिलता है तो वो लोग यूज भी करते हैं, तो उसके सामने देखा जाए तो अगर एक टिन भी अगर कोई लेगा, तो कोई भी लेता तो 8-9 महीना में तो यूज करके खत्म कर ही थे। एज अ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बात करें तो 4 महीना मैक्स। 4 महीना मैक्स। तब तो रीजन है उसका, क्योंकि देखिए टिन जब आप लेते हो ना, तो एक तो आप ये करते हो कि आप एक पैसा इन्वेस्ट कर, 2,500-3,000 रुपए आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिए, तो यू विल टेंड टू यूज इट। जब घर में सामान आ जाता है तो लोग यूज ज्यादा करते हैं, जब तक नहीं आया होता तब तक उसकी यूजेबिलिटी कम, तब तक ऑल्टरनेटिव निकलता रहता है, वही वाली चीज आ जाती है। तो फिर वहां से हम लोग टेस्टिंग बेसिकली चालू हुआ, हम लोग ने टेस्ट वर्ड वहां से रखा, स्वाद का राजा से हम लोग ने टेस्टिंग किया, फिर हम लोग ने स्वाद का राजा से टेस्टिंग किया उसको। रीजन एक सिंपल है कि हम लोग को एक ये लगता था कि टेस्टिंग एज अ फुल वर्ड एक कंप्लीट नहीं लगता है, मतलब स्वाद का राजा इज फाइन, लेकिन इट डज नॉट गिव अ ऑथेंटिसिटी, मतलब पता नहीं क्यों दिस वाज जस्ट अ सिटिंग, यू कैन से द टेस्टिंग कर दिया सिंपल है, टेस्ट का किंग। इन दैट सेंस, मतलब ये वो नहीं था कि हम लोग को कुछ करना ही करना, वहां से टेस्ट किंग का जर्नी वो स्टार्टेड, जस्ट स्टार्टेड। उस समय सिर्फ टीना पैक, ठीक है। तो 3 साल तक, जब तक हम लोग कोरोना आया, which was very bad for all the businesses, not for FMCG. हाँ, not for FMCG was in high demand. It was in high demand where necessity good है, ठीक है। उस समय भी it went good, और उस समय हम लोग को एक बहुत अच्छी चीज बताई, that consumers are now demanding our product। हम लोग ने फिर उस पे अपना बॉटल लाइन और पाउच लाइन चालू करने का प्लान किया, and 2022 we formulated a But don't you think 2022 मतलब 3 साल बाद है फैल से? हाँ, तो मतलब काफी सारा टाइम आपने कंज्यूम किया टू अंडरस्टैंड द लॉन्चिंग ऑफ, या फिर यू वेटेड? see that is something I can say, ले कम एक्सपीरियंस होना, ओके, फर्स्ट रीजन ये कि बिफोर मी nobody was doing this in my family। ओके, सो वो एक टीन वाला बिजनेस हाँ चल रहा है। अब मेरा ये कहना था, स्मॉल पैक जैसे कंज्यूमर जो होते हैं उनको एंड कंज्यूमर तो वही लेगा, एंड कंज्यूमर वही लेता है, और एंड कंज्यूमर जल्दी चेंज नहीं करता है। हाँ, जैसे आज आप कोई XYZ ब्रांड लेते हैं, वो आप जल्दी अनटिल कुछ कंप्लेन रहता है, जो कि बहुत ही अनलाइकली है, क्योंकि 2 रीजन है सिंपल। एक, जो कंपनी पैक करी वो अपने प्रोडक्ट साथ खिलवाड़ नहीं करी, कोई नहीं करना चाहेगा। दूसरा, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि अच्छा तेल होता है। कंज्यूमर तो ब्रांड है, कंज्यूमर को तेल की नॉलेज नहीं है, जैसे पुराने जमाने में होती थी, आज के टाइम में। जैसे मेरे घर में भी अभी तक सरसों तेल पैकेट वाला तो नहीं होता है। ओके, हाँ, वो ये होता है कि गाँव से पिरो करके आएगा, और वो एक बार में 15-20 किलो 25 किलो आता है, एंड दैट स्टेज फॉर ऑलमोस्ट 6 months 9 months, जो भी चला। हाँ, एंड फिर वही नहीं, फिर रिपीट प्रोसेस से देखिए। अब इसमें 3-4 चीजें हैं से जो आप बोल रहे हो ना, दैट इज अ राइट थिंग कि ये लोग करते हैं ना, ये बहुत बड़ी जनता है जो ये काम करती है। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो वहां पर बहुत जन रहते हैं, और वो बहुत जन लेके जाते हैं, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या मार्केट है सच। एंड मतलब ये तो पर सीधा हो गया ना कि एंड कंज्यूमर इज बीइंग द मैन्युफैक्चरर। हाँ, मतलब एंड कंज्यूमर इज बीइंग द मैन्युफैक्चरर, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो गलत काम कभी कभी आते भी हैं, जैसे अयोध्या में एक जगह, सो दैट इज समथिंग कि इन्हीं सब रीजन से ये सब ड्राइव होता है।
लोगों को श्योरिटी ऑफ प्योरिटी चाहिए। श्योरिटी ऑफ प्योरिटी चाहिए। लोगों को जब तक श्योरिटी नहीं मिलेगी कि हाँ मैं जो यूज कर रहा हूँ वो प्योर है। तो हाउ डू यू टेंड टू गिव श्योरिटी? See, we have already planned. I tell you, we have been thinking a lot on this process कि हम लोग जो लोगों को चाहिए क्या वो दें। We are a consumer oriented company. हम लोग को इससे मतलब नहीं है कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इससे मतलब है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। इससे हम लोग को भी पता चलेगा कि हम लोग को क्या बनाना है ऐसा। So it's basically an R&D. R&D बेसिकली हम लोग का R&D यही है, हम लोग का R&D और कुछ नहीं होता है। तेल की में आपको R&D नहीं कर सकते हो। देयर इज अ स्पेसिफाइड नो, सरसों आती है, सरसों पिरानी है, सरसों कर सकते हैं। दूसरा का ये आता होगा कि ये ब्रेड का है, ये अलग breed। वो देखिए मैं आपको तो ग्रेडिंग होती है सरसों की, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, सब ग्रेडिंग होती है। हाँ। और उसके अकॉर्डिंग उसमें इट्स अ बबल ऑफ ऑयल। वो सरसों सीड आती है, इट्स अ बबल ऑफ ऑयल। उसको आप दबाओगे, उसमें से तेल निकलेगा, आप उसको पैक करोगे, बेचोगे। हाँ। No rocket science. हाँ. It's no rocket science. Correct. It can be done by everyone and it is done by many companies. ठीक है। पॉइंट क्या आता है जब आप सामने वाले को ये श्योर कर सको। जैसे आज मैं बोलूं कि हम लोग सामने आपको पेड़ के तेल देंगे, हाँ। तब वो एक आ जाएगा भाई, जब मैं चेक हो जाएगा। हाँ, आज एक जगह पे आपको तेल पेड़ के मिल रहा है, सामने आंखों देखा, Correct. इट इज विजिबल टू यू दैट हाँ यहाँ से सरसों डल रही है, जो आप कराते हो। हाँ, हम वही करा कर, यस वही करा। बेसिकली आप इसीलिए ले रहे हो ना क्योंकि आपको दिख रहा है, भले वो वहां क्या कर रहा है आपको मालूम नहीं, नहीं मालूम, इट्स अ फैक्ट। और वो कितनी हाइजीनिक तरीके से कर रहा है ये भी नहीं मालूम। तो वो तो बिल्कुल नहीं, हाइजीनिक भी नहीं रहता है, हाइजीनिक हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। और वही अगर आपको हाइजीनिक तरीके से देख करके सामने सामने मिले, तो वो कौन दे रहा है? मैं ऐसा हम लोग ऐसा प्लान ऑलरेडी कर रहे अच्छा, हैं। यू आर प्लानिंग ऑफ, या वी आर प्लानिंग समथिंग आउट ऑफ इट कि हम लोग कंज्यूमर को एक्चुअली अपना प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि दिस इज हाउ इट इज पैक्ड, दिस इज हाउ इट इज बीइंग शोन, एंड दैट्स हाउ कंज्यूमर कैन आल्सो टेक अ बिलीफ ऑन अ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ट्रस्ट बिल्डिंग है। डायरेक्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग सामने लोगों को सामने दिखाएंगे कि ये देखेंगे वो आप मतलब आप प्रोसेस दोगे और यू आर डेमोन्स्ट्रेट, you will demonstrate and you will sell also over there. maybe not say again it's a plan. I don't know that. We are still thinking about these things. We want to, लेकिन अब देखिए मैं बेचना चाहता हूँ से ये मतलब नहीं होता कंज्यूमर लेना चाहता है, बहुत डिफरेंस है। अच्छा, कंज्यूमर देखिए आज मैं हूँ, बट कंज्यूमर क्यों नहीं लेना चाहेगा? नहीं होता है एफएमसीजी वर्ल्ड में, ऐसा नहीं। एफएमसीजी वर्ल्ड इज अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है, गुड्स, सॉरी प्रोडक्ट्स, गुड्स। तो इसमें एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है ना कि लोगों को इतनी ज्यादा ब्रांड्स दिखने लग गए हैं, इतने ज्यादा लोग ऑफर करने लग गए हैं कि लोग अब एक्चुअली डरते हैं कि भैया मैं जाऊंगा कोई XYZ कंपनी की बिस्किट लेना है मुझे, वो नहीं मिलेगा, उसकी जगह कोई और कंपनी मिलेगी। हाँ, ठीक है, लोगों को नहीं भी ट्राई करना होगा ना तो भी ट्राई करवा देते हैं। वो मैं नहीं करता, या हम लोग की कंपनी उसमें बिलीव नहीं करती। ठीक है, लोगों को दिखाओ लेकिन जबरदस्ती ट्राई मत करो। इट विल बी अवेलेबल, इट विल बी अवेलेबल, आप ले लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो, वो सामने गिरा रहा है, जितना आप बिलीव करोगे। सो आपका मोटो क्या है बिहाइंड दिस लॉन्च? बिहाइंड दिस लॉन्च सिंपली एंड अगेन श्योरिटी फॉर प्योरिटी, नथिंग। मैं ये जो ह्यूमन है टू द कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर को एक्चुअली श्योर करना चाहता हूँ जो आप खा रहे हो वो प्योर, और प्योर ऐसे होता है, प्योर ऐसे होता है। इससे ज्यादा श्योरिटी तो नहीं मिल सकती। आपके सामने सरसों पिरा रही है, फिर आप उसको पैक कर रहे हो, हाथ सामने बॉटल में फिल हो रहा है, सामने उसकी पैकिंग हुई और सामने सामने आपको मिला। अच्छा, आप बोल रहे हो 2018 से यू आर, ठीक है, सो इफ आई विल काउंट 18, 19, 20, 21, 26 years, 25, 7 years, 7 years, you can nearly 7 years, 8 years लेके चलता है, ठीक है, 8 years हुआ है। आई थिंक एफएमसीजी में 8 साल कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, और बहुत लोगों के हिसाब से एफएमसीजी में 5 साल बहुत होता है टू गेन एनीथिंग। तो अभी अकॉर्डिंग टू यू टेस्टिंग क्या गेन किया है? हाँ, टेस्टिंग ने एक्चुअली अपनी पहचान तो बनाई है। दिस इज अनसेफ फैक्ट। हम लोग की टीम बहुत स्ट्रांग है, हम लोग ने बहुत ही स्ट्रांग टीम बिल्डअप की है, सेल्स टीम हम लोग की बहुत स्ट्रांग है। स्लोली एंड स्टेडली वी आर गेटिंग इनटू पीपल्स
होम किचन, Okay. वी आर गेनिंग अ मार्केट स्लोली. हम लोग का मार्केट शेयर कई एरियाज में को मोर देन 50% पे है. अच्छा, more than 50%. मोर देन 50% है Okay. कई एरियाज में. ठीक है. और सबसे मेजर पॉइंट जो मुझे लगता है कि टेस्टिंग ने सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो बिल्डअप किया वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क. जो डिस्ट्रीब्यूटर एक एफएमसीजी एक एमएनसी का ब्रांड बेच करके कुछ भी नहीं कमाता. So that is where I wanted to ask. मतलब क्योंकि इसमें तो बड़े कंपनीज भी है. उसको माल बेच के उसका कुछ भी नहीं कमाया. अच्छा. We give them a very good margin. We give them space to be in the margin. So that is how you are. And it is not because only we are doing thing. It's a both way thing. उन्होंने भी वो काम का वो लोग भी हम लोग की तरफ उतने ही ओरिएंटेड जितना हम लोग उनकी तरफ ओरिएंटेड. Okay. सी एज जैसे ही आपको प्रेफर करते हैं. वो भी मेरे को प्रेफर. देखिए इसमें लोकल है एंड कुछ भी इशू हुआ तो डायरेक्ट आपसे अप्रोचेबल. नो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग. मेरे मतलब आज मैं अपने 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर से मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में. अप्रोचेबिलिटी है. हम लोग के यहाँ पे ये नहीं है कि आप किस पोजीशन पे बैठे. हम लोग के यहाँ ज्यादा हायरार्की नहीं. हम लोग के हायरार्की इनसाइड द कंपनी. हायरार्की हम लोग की बाहर के लिए है ही नहीं. हम लोग बहुत ही वोकल हैं टुवर्ड्स एनीवन. वी लिसन टू एवरीवन इवन इफ अकाउंट्स का बंदा आके मुझे सेल्स का कुछ ज्ञान दे मैं सुनूंगा. Maybe he's right, maybe he's wrong. That's a different thing. To be honest, एक चीज पूछना है मेरे को. बोलिए. आउट ऑफ टॉपिक है. ठीक है. क्योंकि आपका ऑलरेडी एक लेगेसी है. लेगेसी में वट एवर आई हैव नोटिस सो फार कि दादा पापा जैसे काम करते हैं आगे आपको वैसे ही सिखाया जाता है. एंड इट इज नॉट सिखाया, इट इज इम्पोज कि इसी को फॉलो करो बेटा, ये चल रहा है, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ. कई बार मतलब आई हैव सीन दिस इंस्टेंसेस. आई एम नॉट टॉकिंग कि ये हुआ होगा, बट क्या ऐसा आपको फील हुआ कभी भी, और या फिर आपको लगा कि नहीं, इफ आई हैव टू डू दिस प्लीज लेट मी डू ऑन माय टर्म्स. क्योंकि व्हाट यू आर सेइंग, अगर इंटरनली इफ योर ड्रीम इज लाइक दैट, तो वो आई डोंट थिंक कि मतलब जो पुराने जमाने के लोग हैं दे बिलीव इन दिस. नहीं बिलीव था. वो उनका ये बिलीफ फैक्टर नहीं था कभी. उनका प्रोसेस फैक्टर भी ये नहीं था कभी. नहीं था. हम राजा है, हम मालिक है. बट आज के सिनेरियो कुछ और है. देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं. मेरे पापा ने कभी भी मेरे काम के बीच नहीं, he gave me all the liberty. तुम करो, जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, गलत सही दोनों खुद कर. और he gave me freedom to work. मतलब आप ये समझिए कि कंपनी में एक प्रोसेसिंग यूनिट में जितनी सैलरी होती होगी उतना हम लोग अपनी सेल्स में सैलरी. तो इट्स अ बिग चंक. हम लोग ये बिलीव करते हैं अगर मैं अब सपोज करिए मैं 1000 रुपए अगर कमा रहा हूँ इन अ मंथ, तो आई बिलीव कि वो 500 रुपए उन सेल्स वालों का है, मेरा नहीं. सो विच इज व्हाई दे आल्सो से एवरीबॉडी इन दिस बिजनेस रन एंड गवर्न थ्रू मनी. करेक्ट है. इट्स अ फैक्टर. और दूसरा उनकी बात सुनना, उनको इक्वली रिस्पेक्ट करना. बनाए आज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ये बहुत ये आज बनारस नहीं, आई जस्ट से कि लास्ट 2 साल से मैं पूरा इंडस्ट्री में देखा कि नाउ पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स कि जहां मेरा शांति मिले, जहां मेरे को रिस्पेक्ट मिले, वहां जाए रादर देन जहां मेरे को ज्यादा पैसा मिले. क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को ये भी चाहिए कि पैसा तो ठीक है कमा रहे, एक लाइवलीहुड सबका चल रहा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी सबके चल रहे हैं, बट रिस्पेक्ट, आर वी गेटिंग दैट रिस्पेक्ट? नहीं मिल रही समवेयर और नॉट. आज मैं एक चीज बताता हूँ आपको. हम लोग एक रिसेंट में हम लोग ने हायरिंग की थी, तो 2 लोग हम लोग ने हायर किए थे फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी. तो जैसे वो लोग वहां पे 200 टन माल बेच रहे थे, 200 इन रुपीज, तो 2 करोड़ का माल मिल लीजिए महीने का बेच रहे थे. दे हैड जीरो रिस्पेक्ट बिकॉज वहां पे करने वाले बहुत है. इन आवर कंपनी देयर इक्वली, हम लोग का बास्केट ऐसा कुछ तो है नहीं. तो वी आर अ मस्टर्ड ऑयल ओरिएंटेड कंपनी. ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस पे ही फोकस करते हैं. बट प्रोडक्ट बास्केट में सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही है. हाँ सर, रीजन 2. एक, हम लोग को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है ग्रोथ में. ग्रोथ में ओके. अगर मैं बास्केट साइज अपना बढ़ा लूंगा
तो मेरे लिए और ग्रो करना भी और डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर मेरे पास वेरियस प्रोडक्ट्स हो जाएंगे टू फोकस ऑन। आज मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसपे मुझे फोकस करना है, जिसको मुझे बेचना है। बट आपके पास वैसे भी तो होंगे ना कि when you have two products, so currently you're able to target maybe 100 people. So अब 2 प्रोडक्ट आएगा तो maybe you are able to target 120 people. जो 20 लोग ऐसे भी होंगे जिनको दूसरा प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे हैं लोग, हाँ, लेकिन मेरा अभी टारगेट कल 100 है। ओके। वी आर स्टिल ग्रोइंग, वी हैव नॉट रीच्ड इट। आवर टारगेट इज बिग, यू कैन से वेरी बिग, क्योंकि एफएमसीजी का मार्केट बहुत बड़ा है। एडिबल ऑयल का मार्केट भी अच्छा खासा। अच्छा खासा है। 2.5 लाख टन का तेल तो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, स्टिल एंड इट विल बी इंक्रीजिंग ओनली। हाँ मतलब हाँ, अदर ऑयल्स, हाँ, अदरवाइज। तो जब तक हम लोग का वो टारगेट अचीव नहीं हो जाता है, मुझे अपना बास्केट साइज बढ़ानी है। मेरा एक सिंपल रीजन है कि एक प्रोडक्ट लो, गो डीपर विद इट इन द मार्केट। आज मैं 200-250 किलोमीटर तक डिलीवरीज करता हूँ। वी आर एक्सपैंडिंग आवर विथ ऑल्सो, लेकिन इन 250 किलोमीटर में आपको पहले डीपर जाना है और डीपर जाना है और डीपर जाना है, सो दैट द कंज्यूमर एक्चुअली नोज माई प्रोडक्ट एंड वी आर नॉट देयर इट। देयर आर एरियाज जहाँ पे मुझे बताना नहीं है, और देयर आर एरिया जहाँ पे मुझे बताना ही बहुत कुछ कोई जानता ही नहीं। कोई जानता ही नहीं जैसे। तो ये जो जर्नी है ना, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हाँ, वी हैव अचीव्ड few things that I am proud of. What are you proud of? I'm proud of my team. I'm proud कि मैं जब आया था तो I was very directionless. Now I have a direction. I'm proud of it. Actually, I'm proud of it. क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एज में या मेरी जनरेशन में 50% ऑफ जनता को तो ये नहीं पता करना क्या। हाँ, Still figuring it out. यही आंसर। और ये जो जोन है ना, still figuring it out, ये लाइफ टाइम चल सकता है। जॉब कर रहे हैं, still चल ही रहा है। कोई पापा का बिजनेस लेकर के, जैसे मैं भी पापा का बिजनेस, लेकिन मैंने अपनी लाइन क्रिएट करना चाहा। हाँ, यू स्टार्टेड डिफरेंट सेगमेंट। एक आपने बस मैंने एक डिफरेंट सेगमेंट चालू कर लिया। आज बनारस में, आई कैन से पूरे पूर्वांचल में एक सक्सेसफुल स्मॉल पैक ब्रांड, पूर्वांचल मैन्युफैक्चर्ड स्मॉल पैक ब्रांड कोई है ही नहीं। स्मॉल पैक इनमें आई थिंक मैं ही हूँगा, लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। लेकिन स्मॉल पैक में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के कुछ बड़े ब्रांड्स ही हैं जो एक्चुअली सक्सेसफुल हैं। पूरे पूर्वांचल में, पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में, पूरे बंगाल में, पूरे वेस्ट यूपी भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इन पूर्वांचल सेक्टर और इन नियर बॉर्डर सेक्टर ऑफ यूपी एंड बिहार, हम ही लोग एक सेगमेंट ने जो ब्रांड हैं जो पेनिट्रेट कर पा, जो कि स्टेबल हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव हैं, प्रॉफिटेबल हैं। भले लड़ना पड़ता है, भले कंपटीशन है, सब है, सब मानता हूं मैं। बर्न करना पड़ता है, बहुत बर्न करना पड़ता है, इज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मतलब वही एक 5 साल में आपने एक नया लॉन्च स्टार्ट किया, एक नया असेंबली स्टार्ट किया, एंड नाउ इट इज प्रॉफिटेबल, तब तो अच्छी बात है। हाँ, एफएमसीजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही, कमिंग बैक टू योर जर्नी पार्ट, कि आप बोले थे यू लॉन्च्ड टेस्ट किंग, एंड अभी ये 8 साल फिर टेक फॉर हुआ है। 8 साल की जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आई एम वेरी श्योर। हाँ, ट्रू। एंड बहुत बार ठोकर भी खाई होगी, बहुत बार अपने आप पे भी हंसी आती है। ऐसा कुछ हुआ है कभी कि ऐसा कोई बिजनेसमैन के साथ नहीं हुआ है तो वो गलत बोल रहा है, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है। इट्स एवरीडे लर्निंग प्रोसेस। हर दिन कुछ सोच के कुछ और आते हैं, करते कुछ और। मैं बताऊं, जब मेरा ठोकर खाने का पहला इंसिडेंट जब कोरोना हिट हुआ था, तो वो समय जो था, इट वाज वेरी बैड फॉर पीपल। तो see, I'm keeping that problem aside. I'm just talking like a businessman right now. ठीक है, मैं ये emotional side को off रहा। Bad phase. It was a bad phase emotionally, yes. मैं एक business point of view से सिर्फ FMCG सेक्टर को लेके आपसे बात कर रहा हूँ। It was growing. It was great. ठीक है, लोगों को, हमारा सेक्टर भी तभी ग्रो किया। हाँ, डिजिटल सेक्टर भी तभी ग्रो किया। डिजिटल मार्केटिंग भी कोई बूम जो मिला है तभी मिला, वो कोविड के बाद मिला है। जो उस समय मतलब मैं प्रिक्योर ही नहीं कर पा रहा था।
रीजन ये कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू हैव मेनी सप्लायर्स. आप ये सोचो, मेरे पास तेल है, मेरे पास टिन नहीं है. मेरे पास तेल है, मेरे पास पाउच नहीं आ पा रहा है. दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली आई स्टार्टेड माय स्मॉल पैक थिंग. डिजाइन होकर के रेडी है सब कुछ, लेकिन आ नहीं पा रहा है ड्यू टू फ्रेट इश्यूज. सप्लाई नहीं है. एंड आई वाज डिपेंडेंट ऑन वन डीलर कि मेरे को इसी से टिन लेना है. मेरी खुद की फैक्ट्री में जो लेबर यूनिट्स हैं वो चल नहीं पा रहा. सो ये फर्स्ट मिस्टेक. ये उस समय मुझे समझ में आया कि आई नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सप्लाई. मतलब एज अ पैकर एंड मैन्युफैक्चरर मुझे ये चीज की उस समय इतनी समझ नहीं थी. एंड एक्चुअली मेरी इतनी बड़ी पैकिंग यूनिट नहीं थी. मेरी बढ़ी है ग्रेजुअली, आज एक लेवल पे है. तो उस समय मुझे इतनी समझ ही नहीं थी कि मुझे ये सब लेना चाहिए, ये सब चीजों की जरूरत है. और उस समय जब मेरे पास डिमांड आ रही है तो मैं मानी नहीं. तो जिसके लिए आप 3 साल से पीछे पड़े हो, भैया ले लो, भैया बेचो. इट्स अ वेरी क्रूड मार्केट आई कैन से. तो जैसे आप दुकानों तक जाते हो, आप एक दुकान पे जाते हो, लगे रहते ले लो. आप गए हो कभी? बहुत इमेंस. स्टार्टिंग में तो मैं इतना गया हूँ, मुझे सेल्स, डायरेक्ट सेल्स मतलब जाके बैठे रहो. हाँ, बैठे रहो. यू आर अ बिजनेस ओनर, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को. व्हाट आर यू सेलिंग इज द ओनली मैटर. अच्छा है कि नहीं अच्छा तो है. ये तुम कहीं कह. हाँ वो आज के एक्चुअल में आज के वर्ल्ड में किसी को फर्क नहीं पड़ता. आप कहीं के भी राजा, अगर आप मेरे मतलब का काम कर रहे हो तो मैं ले लूंगा. सही. नहीं कर रहे हो, नहीं जी चले. क्या मोटिवेशन फैक्टर था जो ये चलते रहने दिया? फॉर मी द मोटिवेशन फैक्टर इज ऑलवेज प्रॉफिट. तो हाँ, वो अनसाइड है. मतलब बिजनेस आदमी करता क्यों? पैसे. मुझे तो ये नहीं समझना था आज के टाइम पे इतने सारे स्टार्टअप जो बर्न करते रहते हैं, ओनली रनिंग आफ्टर वैल्यूएशन, नो प्रॉफिट्स. ठीक है, उनकी अपनी बुक्स हैं, अपना तरीका है काम करने का. दे वुड बी अर्निंग, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू. बट व्हाट मोटिवेटेड यू? प्रॉफिट्स तो वही अनसेड है. सेकेंडली मैं आपको बताऊं, जब इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग कि इन अ वेरी क्रूड मार्केट यू आर समवन. जब जैसे लोग जब बोलते हैं कि भैया सरसों तेल असली है, मिल जाएगा. लिटरली लोग लो वॉइस में, डॉक्टर मेरे से पूछा हुआ है कि सर आपका तेल का काम है, असली तेल मिल जाए. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से प्राउडली यू कैन गेट इट. मेरा ब्रांड ले सकते. मेरे रिश्तेदार, मेरे नोन में कितने ऑफिशियल्स हैं जो कि हम लोग से बोलते हैं, वी सेंड देम, दे पे अस, एवरीथिंग हैपेंस. तो वो लोग जब बोलते हैं, जो यूज करते हैं, उनको हम लोग का तेल यूज अच्छा लगता है. दे कम बैक टू अस कि भैया मुझे वही चाहिए. वैल्यू फॉर द कस्टमर. वैल्यू. वो सिर्फ पैसे दे करके एक ब्रांड नहीं खरीद रहे, वो पैसे दे के उस ब्रांड की वैल्यू भी खरीद. वो मिलनी चाहिए कस्टमर. दैट एक्चुअली गिव्स मी अ किक. करेक्ट. सलमान भाई बोले थे आपका किक फैक्टर वो किक फैक्टर था. दैट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग. मुझे पैसा ठीक है, सी व्हेन यू डू अ बिजनेस, पैसा हमेशा था, पैसा हमेशा रहेगा. वो रहेगा. आपके लाइफ में पैसा हमेशा था. एक बोलते हैं जिसे यू हैव ऑल द कंफर्ट, यू आर कंफर्टेबल लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ. हाँ, ऐसा नहीं था कि डे वन कैसा था बिजनेस का? क्लूलेस. मैंने आपको बताया आई वाज परस्यूइंग एमबीए. आई यूज्ड टू कम टू ऑफिस, हंसी मजाक करके चले जाते थे. हंसी मजाक करके चल जाते थे. टाइम पास था मेरे लिए. फर्स्ट डे क्या, फर्स्ट 2 months आई कैन से, स्लोली स्टेडली मुझे इंटरेस्ट एक्चुअल में बिल्ट हो गया. एंड आई डोंट नो, मैंने ये सोच के मैं कभी नहीं आया था कि मुझे तेल बेच. मैंने ये सोच के बचपन से एक एस्पिरेशन होता है कि मेरे को ये करना है. तो आपका कभी था मुझे तेल बेचना? आई वांटेड टू बी बिजनेसमैन बनना था, ये श्योर था. लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी नहीं सोचा था मैं पापा का बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा. कभी नहीं सोचा. लेकिन इंटरेस्ट आ गया, अच्छा लगा. And now I feel it's my responsibility also. I have a certain number of people who actually believes in my product. So that's my responsibility to serve them properly. उसी में लोग नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं. वो तो पार्ट एंड पार्सल है. पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ.
और हम लोग में रेट फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, दैट इज समथिंग वेरी बिजनेस ओरिएंटेड थिंग, फायदा नहीं। आज 8 साल हो गए, यू लुक बैक टू योर लाइफ, हाँ, कुछ डिफरेंट करते हैं अगर कुछ पता हो? बहुत कुछ। एक चीज, व्हेन आई लुक बैक टुवर्ड्स माय लाइफ, मुझे भी स्टार्ट के 7-8 साल हुए हैं। इन 2019 roughly I started as a freelancer. 2020 I started hiring interns of my company. 2021 I formed the company, and that person sitting over there was my first employee. So that is how I began. And now when I look back, so I see a lot of bad decisions, and obviously for those bad decisions I'm sitting here. But when I see कि हाँ ये decision तो obviously ऐसा नहीं लेना था, I could have been at a better place. तो आपको कभी क्या आता है फ्लैशबैक की इसको ऐसा करते या फिर अभी ऐसा कर सकते? हाँ, मुझे कई बार लगता है कि आई एम वेरी लेट। मतलब मुझे लगता है कि व्हेन आई हैव अ गुड प्रोडक्ट इन माय हैंड, जैसे कि एक 5 लीटर का HDPE जार हम लोग ने किया था, एंड व्हेन आई हैव अ गुड प्रोडक्ट मैं ऑलवेज फील कंज्यूमर के पास ये चीज ऑलरेडी होनी चाहिए। being a non-MNC, it is difficult for me to make it available to people in a second or in a specific period, क्योंकि हम लोग को टाइम लगता है पहुंचाने में कंज्यूमर। ये मुझे ये बड़ाई नहीं करनी अपने बारे में कि मैं फट से ये कर सकता हूँ, फट से होगा, रबिश। सामने जो रिटेलर है उसको पहले माल रखना पड़ेगा। GT जनरल ट्रेड में जो रिटेलर्स होते हैं वो जब तक रखेंगे ही नहीं, कंज्यूमर लेगा कैसे? तो गुरु मंत्र क्या है आपका? So I particularly believe in one thing कि retailer wants to sell anything which makes him profitable. मैं simply ये करता हूँ कि I advertise. Obviously that's the first, promotions and marketing है। दूसरा, मैं जो भी प्रोडक्ट निकालता, I usually give good schemes to the retail. वो एक्चुअल में उसके लिए भी प्रॉफिट है, एंड वी नेवर गिव प्रोडक्ट। आई थिंक FMCG का यही एक बेसिक फंडा है। हाँ, एंड दिस इज द ओनली फंडा विच विल वर्क। हाँ, मतलब जनरल ट्रेड प्राइस अच्छा दो, सामान अच्छा दो, ये तो डाउन द लाइन है ही, बिकेगा। लेकिन पहली बार यूज करवाना, हाँ, वो एक चैलेंज कंज्यूमर को सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि पहली बार कंज्यूमर को अगर चाहिए भी ना तो भी रिटेलर जल्दी नहीं लेते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये बिक रहा है ऑलरेडी। हाँ, मतलब आपका बिकेगा नहीं। XYZ ब्रांड बिक रहा है, वो ले लिए, बिक रहा है, दिमाग क्यों लगाऊं मैंने? आपका ब्रांड बिकेगा नहीं बिकेगा क्या पता? भैया आया रखा हुआ, उनको ध्यान तक नहीं रहेगा कि भैया, तो उनका अवेयरनेस, उनको बार बार बोलते रहना कि सर ये लो, आप बेचो। ये टीडियस और वेरी हार्ड टास्क है, लेकिन एक बार अगर वो चला जाए, एक बार कंज्यूमर ले ले, तो फिर वो एक साइकिल है, फिर वो 10, 15, 20 बढ़ता जाए। आज शॉर्टेज रहती है हम लोग के पास नहीं अवेलेबल रहता है। अच्छा, तो विच इज अ वेरी डिमांड इज गुड। हम लोग के पास, आई कैन नॉट क्लेम कि मेरे पास बहुत ज्यादा माल अवेलेबल रहता है हमेशा। मेरे पास वी ट्राई टू प्रोड्यूस आवर ओन ओनली, वी डोंट बाय, वी टेंड टू प्रोड्यूस आवर ओन प्रोडक्ट, पैकेट, सेल इट। करेक्ट। वी डोंट वांट ओनली कि क्वालिटी भी खराब कर देगा, क्वालिटी में खराब कर। एक फॉर्मुलेटेड क्वालिटी एक ही नजरिए से जाती है। क्योंकि जो कंज्यूमर है उसको आदत पड़ चुकी है, मुझे ये तेल चाहिए। एंड फिर वो बात भी तो ब्रांड के ऊपर आ जाती है ना, कि अल्टीमेटली ब्रांड अगर अपना प्रोडक्ट, ब्रांड तो एक बार जो ब्रांड दिखने लग जाता है, फिर आदमी दिखता नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब अच्छा, इसमें सॉरी, बोलिए। मैं आप जैसे ये बोला था ब्रांड बिक जाता है, हाँ, तो अभी मैं उस पर ये बोलने वाला था कि ब्रांड बिक जाता है तो क्या आगे जाके ब्रांड्स मिलावट करते हैं? ठीक है, दैट इज अ वेरी बिग क्लेम। मैं ये नहीं बोल सकता। मतलब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको इसमें। When we get researching about mustard oil, so there were articles, big companies facing कि वो पाम ऑयल मिक्स कर दे रहे हैं, वो ये मिक्स कर दे रहे हैं।
See, I'll tell you what, it's a very big thing to say, लेकिन 55 to 65% in India is usage of palm oil. तो palm oil mix कर दे रहा है या ये कर दे रहा है या वो कर दे रहा है, does not making hazardous to health. Okay. क्योंकि आप ऑलरेडी खा रहे हैं, अदर प्रोडक्ट्स में खा रहे हो, लिपस्टिक में लगता है, बहुत सारी लिपस्टिक में यूज होते हैं palm oil. तो अल्टीमेटली कंजम्पशन हो रहा है. हाँ, कंजम्पशन पाम ऑयल का ऑलरेडी होता है. तो मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन बड़ा ब्रांड क्या करता है, मुझे नहीं पता. मैं अपना मैं कोई नहीं पता. टेस्टिंग में नहीं हो रहा है. मैं अपने दिस इज क्लेम. और इसी क्लेम को प्रूफ करने के लिए यू वांट टू लॉन्च व्हाट यू आर सेइंग कि कुछ. सी दैट्स द पॉइंट. सामने वाले को, जैसे आज आपने खोजा, आपको मिला, नाउ यू आर वेरी स्केप्टिकल कि भाई कोई नया प्रोडक्ट अगर मैं यूज करूंगा उसमें गलत कुछ निकल गया तो मेरी हेल्थ पे आएगा. आपको नॉलेज नहीं है उस बारे. करेक्ट. सो दैट्स व्हाट मेक यू कि skeptical to buy a new brand. That's why I said कि आप एक बार अगर ब्रांड खरीदने लग जाओगे आपको अच्छा लग जाएगा. You won't shift जल्दी. हाँ, वो एक टेंडेंसी रहता है until unless someone is offering something extraordinary at a very good price. At a good price. तो इसीलिए हम लोग को ये बैरियर क्रिएट करने का है कि भाई तुमको कहीं से भी मैं स्केप्टिकल नहीं रहने दूंगा नया ब्रांड खरीदने के लिए. मैंने इसीलिए आपको प्लान अपना बताया कि आज अगर मैं सामने आपकी आंखों के सामने सब हो रहा है, you can बस. How are you planning to show it? I want to know now. फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए हम लोग ने अभी एक प्लान किया था मोबाइल वैन्स का. मोबाइल वैन्स. तो उसमें आप प्रोडक्ट बेचोगे? नहीं, तो डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे लाइव. उसमें मशीन लगी रहेगी जो कि हम लोग की बड़ी मशीनों की छोटा एक प्रोटोटाइप होगा जो एक्चुअल सरसों पेरेगा और दिखाएगा. तो वो वहां पर लाइव चलेगी वो मशीन. अच्छा. वर्किंग कंडीशन में हो, लोगों को दिखेगा तेल पेरा रहा है, लोग वहां से फिर ले सकते हैं. लोग ले सकते, वो प्रोडक्ट भी ले सकते हैं. मैं और वो 100% प्रोसेस, आई एम टेलिंग यू. आज 1 लीटर सरसों तेल 40% सरसों तेल निकलता है सरसों सीड में से, बाकी खली होती है. वी शुड नॉट गो देयर. ठीक है, 40% ऑयल निकल रहा है. तो 1 लीटर तेल डालने के लिए आपको अकॉर्डिंगली सरसों डालना पड़ेगा. और वो टाइम लगेगा, मशीन अपना टाइम लेगी. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. और अगर तेज करेंगे तो इट विल लूज इट्स न्यूट्रिशन. अच्छा. जो कि रिफाइंड ऑयल में मतलब रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में सबसे बड़ी चेंज ही है, डिफरेंस ही यही है. न्यूट्रिशन, ओमेगा, टेस्ट भी नहीं होता है. That's a totally different topic to talk on. मैं पहले ये कंप्लीट कर देता हूँ फिर आप मेरे से बोलोगे. So you can complete कि जब आपको स्लो प्रेस कोल्ड प्रेस ऑयल मिलता है और जब आप उसको एक बार खा लेते हो ना, फिर आप जल्दी शिफ्ट नहीं करोगे. वो फ्लेवर जो आएगा ना, जो मैंने बोला, मस्टर्ड ऑयल कैन बी यूज्ड एज गार्निशिंग आल्सो. झालमुड़ी, उसमें झालमुड़ी में तो कच्चा तेल पड़ता है, लोग यूज करते हैं, खाते हैं. वो एसेंस मिलता है, वो एसेंस उसके बिना इनकम्प्लीट है. आप कलकत्ता जाओ, जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाराणसी इन ऑल. कलकत्ता में समोसे, कचौरियां सरसों तेल में बनती हैं. व्हाट फ्लेवर्स इट हैज, अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल. वो बोला जाता है कि ये अच्छा है, एटलीस्ट दूसरे तेल मतलब ये लो. जबकि वहां पे लोग नॉन वेजिटेरियंस में तो यूज होता ही है सरसों तेल. वहां पे रिफाइंड ऑयल की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है. कलकत्ता इज अ पोर्ट. हल्दिया पोर्ट इज इन कलकत्ता. वहां पे रिफाइंड ऑयल की सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है, लेकिन वहां सरसों तेल सबसे ज्यादा बिकता है. तो आप ये सोचो, जहां सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल आ रहा है वहीं नहीं सबसे ज्यादा कंज्यूम. तो सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां वहां है. कांडला ये हेल्दी है. इट्स अ फैक्ट. सो मेरा फैक्ट्री मैं नहीं बोल रहा, इट्स अ थिंग कि मस्टर्ड ऑयल हेल्दी है. उसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, न्यूट्रिशंस है, विटामिन है, कोल्ड प्रेस है. इट इज. ये कोल्ड प्रेस क्या, कच्ची घानी सुना है, ये कोल्ड प्रेस सेम चीज है मतलब? सी आई हैव हर्ड 3 times from you कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस, ये सब सुना है. ये कच्ची घानी, कोल्ड प्रेस इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द ऑयल, गेटिंग ऑयल आउट ऑफ कच्ची. कच्ची घानी क्या होता है? सीड. अच्छा, सीड्स को कच्ची घानी बोला जाता है. कच्ची घानी इज अ फॉर्मुलेटेड सीड. वो सीड. तो जो ऑयल निकलता है उसके प्रोसेस को
कोल्ड प्रेस। तो जो लिखा जाता है कच्ची घानी सरसों तेल, हाँ इसका मतलब क्या हुआ? ये तो फिर वही हुआ सरसों का सरसों तेल है। हाँ, मतलब कच्ची घानी इज अ कैटेगरी यू कैन से ऑफ ब्रीड मस्टर्ड ब्रीड ऑफ सरसों सीड्स। हाँ तो जो घानी होती है, हाँ वो कच्ची घानी का जो तेल होता है, इट हैज गुड पंजेंसी, हाँ गुड खुशबू। जो आपने बोला था हाई पंजेंसी, हाई पंजेंसी होती है, फैक्ट है, लेकिन हाई पंजेंसी एक्चुअल में लोगों को नहीं समझ में आता कि वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो कई तरीकों से बनाई जा सकती है विच आर नॉट लीगल ऑल्सो। अच्छा, मतलब हाई पेंडेंसी होना भी सही नहीं है। वेरी हाई पंजेंसी होना भी सही, अच्छा, गुड अच्छी पंजेंसी होनी चाहिए, एक डिसेंट पंजेंसी होनी चाहिए। बट जैसे रोते हुए मैंने भी देखा है कि वो इतना ज्यादा पेंडेंसी होता है कि वहाँ कई बार खड़े रहना ही मुश्किल होता है। वो तो देखिए ड्यू टू वॉल्यूम है। ओके, दैट इज नथिंग टू डू विद द क्वालिटी नहीं, दैट इज ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंस ऑफ मस्टर्ड ओवर देयर। उसी समय पेरा रहा होता है तो आंख में, जैसे प्याज काटते समय, सॉरी हाँ। जब प्याज काटते समय आंखों में झांझ लगती है। झांझ लगती है, द सेम, लेकिन उसके बाद नहीं लगती है। हाँ, द सेम थिंग कि सरसों तेल एक पंजेंट होता है, ये फैक्ट है। उसमें पंजेंसी एक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरसों तेल में खुशबू होनी चाहिए। सरसों तेल में अगर खुशबू नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज, वो हॉट प्रेस हुआ है। ओके, जो भी चीज जैसे धीरे धीरे धीरे, कोल्ड प्रेस इज बेसिकली एट अ मिनिमम टेम्परेचर जहां पे तेल निकल पा रहा है आउट ऑफ द सरसों सीड, दैट्स कोल्ड प्रेस। दैट्स जैसे गाय पहले घूम के चलाती थी, दैट्स कोल्ड प्रेस। वो धीरे 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 अब वो स्लोली जो होता है उसको कोल्ड प्रेस, उसको कोल्ड प्रेस। सो कच्ची घानी ने नथिंग टू डू विद द की प्रोसेस, वो एक बस सीड है। हाँ बस, और कुछ नहीं। हमें ये सब जनरल पब्लिक, मैं नहीं जनरल पता है। पब्लिक की कच्ची घानी मेरे को लगा कोई प्रोसेस है, कुछ होगा। नहीं, कच्ची घानी इज अ कैटेगरी ऑफ सीड्स। ठीक है, अब ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे मेजर जो बात होती है कि सरसों जो अच्छी होती है वो सिर्फ राजस्थान या फिर यूपी या फिर मुरैना के कुछ पोर्शंस में पाई जाती है। वो यूपी में, एक्चुअल में बिहार में जो हम लोग की सॉइल है उगती है, सही है, ये नहीं है कि खराब है, लेकिन इट्स नॉट अप टू द मार्क। ओके, लेट्स प्ले रैपिड फायर सर। ठीक है, मेरे पास कुछ छोटे चीजें हैं। टेस्ट क्या है? हेल्थ। छोका या पकोड़ा? पकौड़ा। मैंगो का अचार या नींबू का अचार? मैंगो। विलेज का फूड या रेस्टोरेंट का फूड? विलेज। मैनुअल काम अच्छा लगता है या ऑटोमेशन? मैनुअल। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग की चाय? इवनिंग की चाय। सो इससे हमें ये पता चलता है कि आप एक प्योर मस्टर्ड ऑयल है, कि आपको पकौड़ा अच्छा लगता है, चौका भी अच्छा लगता है कहीं कम, और मैंगो का अचार इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें तो कूट के सरसों तेल रहता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। कच्चे आम में वो जब सरसों तेल और अभी वो सीजन भी है, अमेजिंग फ्लेवर्स। मतलब बहुत बार ये देखा है कि आम को बस कट किया, चॉप किया, कुछ डाला, हल्का सा तेल डाला एंड मिक्स करके फ्रेश जब आप खाते हो ना, मतलब जो 2 दिन का बना हुआ होता है, 3 दिन का बना हुआ होता है, फर्मेंटेड, एसेंस आता है, अलग फ्लेवर आता है, मतलब इट्स द बेस्ट थिंग इन दिस वे। तो ये एसेंस, इज इट समथिंग जो आप प्रिजर्व करवाते हो या फिर इट इज नेचुरली प्रिजर्व्ड? इट्स नेचुरल। जो असली, मैंने आपको बताया ना, सरसों तेल में जो असली होता है, जो असली सरसों तेल होता है, जो लोगों को ढूंढना चाहिए, इज द खुशबू ऑफ द ऑयल। तेजपन, पीपल लुक आफ्टर द कलर, दैट्स अ फैक्ट। हाँ ठीक है, और लोगों को ये बात दिखने में अच्छा नहीं, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, पीला होना चाहिए। जैसे कि ये बात गलत है बोलना कि जैसे ये प्रोडक्ट इज देयर, हाँ, अब ऑब्वियसली ये तो ग्रीन नहीं है, हाँ, देखने से पता नहीं चल रहा है, हाँ, बिकॉज अभी आप इसमें एक काम करिए, आप 1 लीटर देखिए, इससे डार्कर दिखिए। वी हैव 1 लीटर। अब आप देखिए इसको, इससे डार्क दिख रहा है कि नहीं, आप बताइए। थोड़ा डार्क है, थोड़ा डार्क है। अब आप इसी को 5 लीटर में कर दीजिए, इट्स अमेजिंगली डार्क। तो देखिए डेंसिटी बढ़ते जैसे ये, हाँ, ये डेंसिटी बढ़ी तो वो और डेंस हो जाएगा तो ग्रीन हो। एंड एक्चुअल में ये गर्मी है। इस समय जब नई सरसों जो होती है ना, हल्की गीली, तो उसमें जी ज्यादा होता है, जैसे ग्रीन पोर्शन ज्यादा होता है।
और जब वो सूखती जाती है तो उसका वाहियात बढ़ता जाता तो है। ये तो सर आपका एक्सपर्ट मोड है। हाँ मतलब ये चेक तो कर बहुत लो ही टेक्निकल चीज है। ये सब अगर मेरे को बेसिक लैंग्वेज, लेमैन कैसे चेक करेगा? थोड़ा सा तेल लो हाथ में, एकदम थोड़ा सा, लाइक 2 drops तेल ले लो, अच्छा, तेल हाथ में लेना है, हाथ में ले लो, रब इट। ठीक है। एनी नेचुरल चीज विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी, ठीक है। अगर वो सरसों तेल ऐसे 2 बूंदी रगड़ा, सूख गया, आप बॉटल एक बार दीजिए मेरी, शुड सी दिस इज आवर बॉटल, I'll open it in front of you. ये मैंने खोला। ये आप ही का ब्रांड है। हाँ You are ready to test it on camera? I don't have any issues over. हाँ, ठीक है, हाँ, आप देखिए go ahead. मैंने एकदम थोड़ा सा, ये एकदम लाइव टेस्टिंग आप कर रहे हाँ हो? हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हाँ. तेल मैंने लिया, हाँ, ठीक है। ठीक है, ये तेल है, हाँ, अब मैंने इसको रगड़ना चाहा, हाँ, ठीक है। ठीक है। एक पंजेंट स्मेल आई आपको, हाँ, एक खुशबू आएगी, हाँ, तेज नहीं आएगा, नाक में नहीं लगेगा, एक खुशबू आना चालू, स्लोली एंड स्टेडली ये खुशबू खत्म होती चली जाएगी। Why? The oil actually vanishes from your hand. तो बस कम क्वांटिटी में लिया हुआ है। अब यही आप रिफाइंड ऑयल ले लो, ओके, which is chemically processed via different things. So it is no more a natural thing. वो नेचुरल नहीं बचा। जो चिपचिपापन रहता है, चिपचिपापन, आप जैसे उसको जब आप लगाओगे ना तो एक लेयर फॉर्म हो जाएगी आपके हाथ में तेल की, और जब आप सरसों तेल लगाओगे तो एक लेयर नहीं फॉर्म होगी, एक चमक आएगी। अब तेल हाथ आपका सूख गया, दिस इज द ओनली वे। See, this is a very good way to find. Not saying कि अदर वेज there are other ways. There are other ways, पंडेंसी है, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन this is the one of the best ways. आप खोल करके पता लगा सकते हो, कलर से पता लगा सकते हो, many ways. तो ये तो मोस्टली जितने भी मस्टर्ड ऑयल सेल कर रहे हैं, जितने भी ब्रांड्स है, दे मोस्टली नो दिस एंड दे आर यूजिंग इट। maybe not, I am not aware कि कितने लोगों को ये बात पता है। देखिए सरसों तेल का यूसेज बहुत, it's not only, हाँ ऑब्वियसली कुकिंग तो यूज होता ही है, देसी नुस्खे में भी बहुत है, कान में डाल दो, कान में डाल दो, चेहरे पे लगा लिया, बालों पे लगा लो, मसाज होती है बालों में, इट्स वेरी गुड फॉर हेयर। मतलब मुझे लगता है कि ठंड में तो दिस इज टू बी यूज्ड। मेरे दादाजी लोग का टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ बाल थे, इट मेक्स योर हेयर थिक compared to what it is. It increases your density of your hair. तो नहीं, बालों में तो बहुत बेनिफिशियल है, और ये आज की प्रथा नहीं है, ये सालों पुरानी प्रथा है जो आज तक चलती जा रही है। तो सबका सरसों तेल एक ही रहता है? Depends upon what kind of सरसों they have used, the grade of seed they have used. नहीं मोटे मीनू से जैसे आपने पैक करके बेचा, if I'm using it for massage, same सरसों तेल I'm using it for cooking, same सरसों तेल कोई दिक्कत everywhere else. सेम सरसों, आप देखिए सरसों तेल ग्रेड ऑफ सरसों की डिपेंडेंसी होती है अपॉन द क्वालिटी ऑफ द ऑयल, लेकिन अगर सेम ग्रेड का सरसों खाने में आप यूज कर रहे हो, सेम ग्रेड की सरसों आप पीने मसाज में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कान में आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं होता कि खाने का सरसों अलग होता है और लगाने मतलब का, वही मैं समझना चाह रहा था। नहीं, क्योंकि देखिए ना, कोकोनट ऑयल के लिए आया था कि ये हॉट एयर ऑयल, ये एडिबल कोकोनट ऑयल, ये वैसा। आई डोंट थिंक सरसों में ऐसा कुछ है, मस्टर्ड में। कोकोनट ऑयल में भी क्यों आया था मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ऐसा नहीं। फ्यूचर में आएगा, आप लाओगे? नहीं मतलब ये तो वो वाली व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स टेस्टिंग को लेकर के? As of now, what I can see, मेरा immediate a plan is to make the consumer aware about what we actually do and how we actually do. Okay. That's it. हम लोग का नेक्स्ट प्लान ही यही कि मुझे कंज्यूमर को दिखाना है कि हाँ ऐसे काम होता है, ऐसे माल निकलता है, ऐसे तेल बनता है, ऐसे पैक होता है, आप लेके जाओ, पढ़िए। That's it. मेरा एक्चुअल में रीजन ही अवेयरनेस है, एजुकेशन है, कि कंज्यूमर एजुकेट हो और सही दाम पे सही माल मिल जाए। दैट्स इट। और मेरा कोई ऐसा बड़े नहीं कि आई वांट टू चेंज द लुक फेस ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड ऑल, नहीं हो सकता। दैट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। मस्टर्ड ऑयल सेम है तो तेली, हाँ। एक
सरसों उठाएगा, फेरेगा, तेल मिलेगा, कोई उसमें कुछ चेंज वो ऐसा चेंज कोई कर ही नहीं सकता। अभी जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स चेंज कर रही है कुछ कुछ, अभी मोदी जी ने 5 लाइन कह दिए, हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई, हमारी सोने वालों की इंडस्ट्री इफेक्ट हुई, सबकी हुई। गोल्ड तो इफेक्टेड है, गोल्ड पे तो ज्वेलरी वाले तो इफेक्टेड हुए हैं। है ही। तो मतलब उन्होंने ये भी बोला कि ट्रांसपोर्ट घूमना फिरना कम करिए, ट्रांसपोर्टेशन पे रोक लगाइए, खाना कम खाना, करिए, तेल कम यूज हाँ। करिए। तो See, there is a इससे factor. क्या आपके पे भी मोदी जी ने ये क्यों बोला? क्योंकि इंडिया का फॉरेक्स बहुत ज्यादा यूज होता है एडिबल ऑयल। ठीक है, इंडिया में कंजम्पशन इज 2.5 लाख टन प्लस पर मंथ ऑफ एडिबल ऑयल इटसेल्फ। 2.5 लाख टन एक महीने का। एक महीने का इंडिया का। प्लस हाँ। प्लस ही, कम नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत नहीं है, इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। और ये इसका रीजन भी मुझे नहीं पता, क्योंकि 1992 तक जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, इंडिया वाज सेल्फ सफिशिएंट। वो तो ठीक है, कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड एंड एवरीथिंग, लेकिन रिफाइंड ऑयल्स जो इंपोर्ट होते हैं उसके अगेंस्ट फॉरेक्स यूज होता है। हम लोग कभी भी, मैं इंपोर्टेड ऑयल्स को सपोर्ट नहीं करता, पर्टिकुलरली मैं नहीं करता, मुझे नहीं करना। फ्यूचर नहीं पता, मैं अभी नहीं करता। फ्यूचर देयर आर डिफरेंसेस, आई डोंट नो, मैं अभी नहीं करता। रीजन ये सिंपल है, मेड इन इंडिया आई सर, और अच्छी चीज है। कल्टीवेशन यही होती है, ग्रो यही होता है, यहाँ का फार्मर पैसा कमाता है, यहाँ का लोग उसको पेरते हैं, यहीं के लोग उसको यूज करते हैं, और पैसा भी यहीं रहता है, यहीं के रोटेशन में रहता है, पैसा बाहर नहीं जाता। सेम गोस फॉर ग्राउंडनट ऑयल ऑल्सो, सेम गोस फॉर कॉटन सीड ऑयल ऑल्सो। ये इंपोर्ट होते हैं लेकिन यहाँ पे ग्रो भी होते हैं। रिफाइंड ऑयल इज मेजॉरिटी क्या है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट ही होता है, लेकिन उसका यूसेज सबसे ज्यादा ओरेका में है और घरों में बहुत कम है मेरे हिसाब से। ये मेरी रीडिंग है। घरों में लोगों को एक्शन में अच्छी चीज चाहिए, उसके लोग पैसा देने तैयार रहते हैं, उनको मिलती नहीं है या उनको एजुकेट नहीं किया जाता। घर, आपका घर एजुकेटेड है रिगार्डिंग ऑयल, तो घर पे तो आपका R&D एट होम मोस्टली है। हाँ, कि भाई बताओ कैसा है। मेरे घर में ऐसा स्टार्टिंग में ऐसे किया था, पहला लॉट ही गया था। मुझे पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज मैंने जो घर पे तली थी वो तो पापड़। मारवाड़ियों में पापड़ का यूसेज बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा तेल डाल के उसको गर्म करके उसमें पापड़ डालते हैं, वो पापड़ तल के बाहर निकलता है। तो अब वो रिफाइंड में वो भी होने लग गया। जबकि बंगाल साइड, उड़ीसा साइड सब सरसों में, वो सब सरसों में करते हैं। हाँ। और वो अच्छी ट्रीटमेंट भी होती है। सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल कलकत्ता में आता है और वहां सबसे ज्यादा तेल जाता है। कलकत्ता इज पोर्ट विच वहां से आता है और फिर आगे चल जाता है। ठीक है, वहाँ यूज नहीं होता, वहाँ यूज बहुत कम होता है, बहुत कम। यूज हर जगह होता है, ऑल ओवर इंडिया, हर जगह। मेरे घर में भी आता है रिफाइंड ऑयल, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। बिल्कुल, सब सारे घरों में आता है, लेकिन एक लिमिटेड यूसेज होना, ज्यादा मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आई गेस मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। अब ऑलिव ऑयल इज समथिंग वेरी प्रीमियम, अगेन इट्स एन इम्पोर्टेड ऑयल, आई डोंट सपोर्ट इट। अपना देसी ऑयल की तरफ आई थिंक जो मोदी जी ऑल्सो ट्राई कि सेल्फ सस्टेनेबल इंडिया बनाए। आई थिंक मस्टर्ड ऑयल इज द कैटेगरी कि जो उसको बना सकता है। मेजॉरिटी ग्रोन इन इंडिया, मेजॉरिटी यूज इन इंडिया। इफ इंडिया बिकम्स अ सुपर पावर इन क्रिएटिंग मस्टर्ड ऑयल, देन बहुत कुछ डिपेंड करता है यहाँ फार्मर्स पे, यहाँ की कल्टीवेशन पे। अब जैसे हार्वेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, बहुत बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू योर। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ मार्केटर आई हैव टू अंडरस्टैंड कि टेस्ट के या फिर कोई भी एक ब्रांड में अकॉर्डिंग टू यू क्या टफ होता है? ब्रांड बनाना टफ होता है या फिर उसको मेंटेन करना एंड मार्केट करना टफ होता है? बिल्डिंग अ ब्रांड और मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग? मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग। ओके, क्योंकि पता है, बिल्डिंग अ ब्रांड, योर लाइन ऑफ फील्ड, हाँ? Nah, my line. Now what I've seen for my brand, and for
of ever years I've been working. होता क्या है जब आप बिल्ड करते हो तो यू नो दैट यू हैव टू बर्न योरसेल्फ, लेकिन जब आप मेंटेनेंस पे आते हो तो यू हैव अ टेंडेंसी कि यार मैं अब मेहनत कर ली, अब मुझे कमाना भी है, तो नाउ यू पास ऑन द कॉस्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर विच दे आर रेडी टू एक्सेप्ट और नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. देखिए बहुत ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत लोग कंपटीशन लड़ रहे हैं, बहुत सारी अवेलेबिलिटी. तो इन दैट सिनेरियो मेंटेनिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिकम्स डिफिकल्ट. आप घुस गए, आप लड़ रहे, यू आर अवेलेबल नाउ. अब जैसे रिटेलर है वो मान लीजिए 150 रुपीज में आपका माल ले रहा है, पीछे से कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है ड्यू टू जैसे अभी वॉर और चल रहा है, उससे कॉस्ट बढ़ती. अब आपको उसको 160 का देना है, दूसरा ब्रांड आता है बोलता है मैं 150 में ही दूंगा. प्राइस गेम खेल रहा है, विच इज रॉन्ग. प्राइस गेम खेल के वो कहीं नहीं जा पाएगा, वो भी 160 उसको करना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा. लेकिन अब क्या हो जाएगा, जैसे अगर वो मेरे से 100% मेरे ऊपर डिपेंडेंट था, वो 50% मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, 50% वो उसका मान लिया. इट्स ऐसा नहीं है. एफएमसीजी में एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल. एफएमसीजी में इररिप्लेसेबल कुछ नहीं है. एवरी ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हुए देखे हैं हमने. तो लास्ट 5 years में बहुत सारे ब्रांड आए, बहुत सारे गए, कुछ रिटेन करते हैं, कुछ कोलैप्स हो जाते हैं. तो दैट रिटेन करना, मेंटेन करना अपने आप को मार्केट में गिव्स यू अ वेरी बिग कॉस्ट, मोर देन द बिल्डिंग पार्ट. नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो अब आ रहे हैं, उनसे आपका भी जनरेशन अब आएगा. नो, यू आर इन द बडिंग लाइफ, इन द ग्रोइंग लाइफ. अब आप देख भी रहे होंगे कि नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं. हो सकता है कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके फील्ड ऑफ लाइन में भी आ रहे हैं. यू आर फेसिंग इट डे इन डे आउट. व्हाट इज द चेंज दैट यू आर सीइंग एंड व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वांट टू गिव? I don't think so I'm big enough to give any advice or adult enough to give any advice. What is the change that you are seeing? Change I can say, आपकी इंडस्ट्री में change I can say that पहले के जमाने में तेल ड्रम्स में आते थे, पैक होता था, लोग भरते थे. Now people want speed, wants your brand availability everywhere, easy convenience, quick commerce. लोगों को अब ये Blinkit एंड ऑल चाहिए कि भाई क्विक कॉमर्स से मेरे को मिल जाए तुम्हारा वो सामान. अगर नहीं मिल रहा है तो यू आर रिप्लेस्ड. करेक्ट है, सिंपल. तो मेरे हिसाब से अगर ये कर सकता है आदमी कि वो हर जगह अवेलेबल है, और आज के टाइम के लोग यही चीज पे वो करते जा रहे हैं कि मुझे एवरी टाइप ऑफ मार्केट में अवेलेबल है. से हम लोग के मार्केट में दिस इज द सिनेरियो कि इफ यू कैन नॉट बी द बेस्ट, बी अवेलेबल फॉर एवरीवन. दिस इज द सिनेरियो दैट आई फेस एंड आई टेल माय क्लाइंट्स आल्सो कि इफ यू थिंक दैट यू आर ओके एंड यू आर गुड, but your customer thinks that no, you're not good, then be available for everywhere and everyone. Automatically customer सोच लेगा कि हाँ this is good. हम लोग के साथ ऐसा है कि आप अवेलेबिलिटी तो होनी ही चाहिए, एवरी काइंड ऑफ मार्केट में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कन्वीनियंटली मिलना चाहिए, और गुड प्राइस, गुड टेस्ट, वो तो डाउन ये सारा भी होना ही चाहिए. तो मेरी जनरेशन मुझे लगता है कि इज वर्किंग ऑन दिस पार्ट. सो अभी आपने एक टेस्ट करके बताया, टेस्ट किंग का टेस्ट करके बताया कि टू चेक द क्वालिटी, शुड दिस बी टेस्टेड पैन इंडिया? कि मतलब आप ऐसा कुछ ड्राइव करेंगे कि टू शो कि दिस इज हाउ यू टेस्ट, या फिर और कोई मेथड है? देखिए मतलब एनीवन हु इज परचेजिंग, जैसे इफ आई एम परचेजिंग एनी ब्रांड फॉर एग्जांपल, तो हाउ विल आई नो कि, क्योंकि मैं वहां बैठ के ये नहीं कर पाऊंगा. ट्रू. समय भी नहीं है, दिमाग भी नहीं लोग लगा. हाँ, तो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू शुड लुक, दैट पीपल शुड लुक, नॉट यू, पीपल शुड लुक? क्योंकि देखिए आप एक क्वालिटी क्लेम दे रहे हो, दैट इज फाइन. हो सकता है उस दूसरे ब्रांड भी दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट हाउ विल आई डिफरेंशिएट योर ब्रांड विद अदर ब्रांड? सी डिफरेंशिएशन पार्ट, अगर हम लोग सरसों तेल जैसी या एफएमसीजी फील्ड में बात करें तो ज्यादातर गेम दो ही जगह होता है, पैकेजिंग फर्स्ट एंड सेकेंडली इज योर डिस्ट्रीब्यूशन साइज. बाकी आप तेल में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं ला सकते.
It is done by a process. It cannot change. ठीक है? If someone is adulterating their process, how See, to that is something recognize? bad. Is there a way to recognize it by seeing or judging or जैसे बहुत जन ये बोलते हैं ना कि इसको आप शेक करके देखो, हाँ, झाग बन रही है, झाग बन रही है कि नहीं, बबल्स हो रहे हैं कि नहीं. बबल्स बन रहे हाँ, हैं. जैसे बहुत जन इसी में आप देखेंगे बबल्स ऊपर जा रहा है. हाँ हाँ, तो मतलब वो बहुत जन बोलते मैं हैं आपको बताऊं कि आप देखो ऊपर ना झाग तैरना चाहिए. बहुत जन कि बोलते अपना हैं. फूड डिपार्टमेंट सर बहुत स्ट्रांग है. हाँ, कोई अगर गलत काम करता है वो पकड़ा ही जाता पकड़ा है. ही जाता है. बहुत ज्यादा टाइम नहीं चल सकता, कोई नहीं चल सकता. दैट्स अ फैक्ट. ठीक है. और चेकिंग होती चलती है. देयर आर नॉर्म्स व्हिच हैज टू बी फॉलोड. तो ये बहुत ही कम चांसेस हैं हाँ, कि आपको ऐसा कुछ मिले. अगर है भी, इफ यू फाइंड इट ऑल्सो, तो यू कैन कंप्लेन इट. उनके कस्टमर केयर पे, फूड मिल डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं. इसका कोई ऐसा वे नहीं है कि, क्योंकि अडल्ट्रेशन कई तरीकों से हो सकती है. तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि इसका कलर डिफरेंट होना चाहिए, इसके झाग नहीं आना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए. एडल्ट्रेशन के कई तरीके जो कि गलत हैं और जो कि हमेशा गलत रहेंगे. उसमें नो वन कैन फाइंड आउट एनीथिंग. ना मैं ये बता सकता हूँ कि अच्छा कैसे है, मैं ये नहीं बता सकता गलत कैसे है. अच्छा, नाउ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा, है ना? तो आपके मन में भी कुछ होगा क्वेश्चंस कि जो विच यू वांट टू आस्क द पब्लिक. I actually want to ask, I want to know कि कोई भी ब्रांड XYZ ऐसा क्या करे कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे. सिंपल. ऐसा पब्लिक बोले कि प्राइस कम कर दो, ऑफर्स दे दो. प्राइस कम कर दो, मतलब तुमको सस्ता तो खाना नहीं, अच्छा खाना. हाँ, पब्लिक को और प्राइस कम करना नहीं है. पब्लिक को तो आदत है 200 रुपए खर्चा करने की 1 लीटर तेल. पब्लिक को प्राइस नहीं कम करना, पब्लिक को तो अच्छा खाना. तो वो दिस इज योर अल्टीमेट क्वेश्चन. बस मेरा मेरा मेरे को और कोई है नहीं. मेरा रीजन ही यही है कि मुझे ये जानना है पब्लिक से कि कोई भी ब्रांड, इट्स नॉट अबाउट मी, कोई भी XYZ ब्रांड आपको अगर कुछ पिच इन कर रहा है तो आपको आप उस ब्रांड में क्या देखते हैं. आप XYZ ब्रांड लिए, नया ब्रांड अगर आप शिफ्ट किए तो आपने क्या देखा, और नहीं किए तो क्यों नहीं किए. और क्या ऐसा आपको कोई भी ब्रांड प्रोवाइड कर सकता है, बड़ा ब्रांड हो शो की एक छोटा ब्रांड नहीं कर सकता. या I'll put on this customer question. हाँ, मतलब आई डोंट नो. आई जस्ट, मैं कस्टमरों से भी बात करता हूँ ना. जैसे एक बार, see, I don't tell people who I am. This is the first time coming in front of camera, and I usually don't go on to कि भाई मैं ये हूँ. जो बात हो रही है फोन पे होती है. टीम इज देयर एंड एवरीबॉडी हैंडल्स इट. तो मैं एक बार रिटेल काउंटर पे खड़ा था, किसी ने प्रोडक्ट दिया मेरा ही, और मैंने देखा, उसने लिया, उसने अच्छा, आप देखा, खरीदते हैं. हाँ उसने देखा, सब कुछ ट्राई किया और बोला हाँ बढ़िया है, लेकिन तुम हमें XYZ ब्रांड दे. XYZ ब्रांड कोई भी, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, इन दैट सेंस कोई भी ब्रांड दे दो. ठीक है, गॉट इट. ठीक है. आई वाज लाइक व्हाई. अच्छा, आपने कस्टमर से पूछा? मैं पूछा हाँ. व्हाई. भैया पुराना है, चला आ रहा है, हाँ, कोई फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो मुझे उसमें क्या दिक्कत, भैया बढ़िया है वो भी अपनी जगह, उसमें भी कोई प्रॉब्लम. लेकिन हम यही लेते हैं. तो ये कैसी आदत हुई. मतलब अगर कोई चीज आपको बढ़िया मिल रही है, उससे भी बढ़िया मिल रही है, तो क्यों नहीं लेते. और रिटेलर्स, व्हाई डोंट रिटेलर्स एक्चुअली वांट टू पुश प्रोडक्ट्स. समय नहीं देना है. मतलब आप कमाते नहीं हो, मान लो XYZ ब्रांड बेच करके, अगर आपको कोई ब्रांड कमाई दे रहा है तो आपको क्यों नहीं बेचना. आई डोंट नो. आई सिंपली डोंट नो द आंसर ऑफ ऑल ऑफ दिस. मैं सिंपल सा, मैंने आपको पहले बोला, बिजनेस इक्वल्स टू प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस बर्न क्यों करता है, इट डज नॉट मेक प्रॉफिट. अगर आप बर्न कर रहे हो, मान लो आप 2 साल बर्न किए, तीसरे साल, 5वें साल आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि यार इतने साल ब्रेक इवन सब ब्रेक बनाना चाहिए. ब्रेक इवन सब कुछ वरना क्यों कर रहा है कोई, व्हाई. तो एक पॉइंट आएगा आप खत्म हो जाओगे. बड़ी कंपनियों के पास वेंचर्स के हैं, साथ आप इंटरेक्ट कर चुके हो ऐसे ही. a few of them have आज तो they have no replies. आज आप अगर पूछोगे किसी रिटेलर XYZ से कि भैया आप ये तेल का पाउच बेच के कितना कमाते हो, बोलेगा 5 रुपए.
ठीक है, दिन का 10 और बेच लो, कितना रुपए हुआ? 50 रुपए कमा करके आप कैसे चल सकते हो? आप दुकान कैसे चलाओगे? आपने ऐसे 50 प्रोडक्ट्स रखे हैं, 2,500 रुपए, कैसे दुकान चलेगी? आज के टाइम पे बनारस जैसी जगह जो इतनी महंगी, इतना महंगा रेंट है, कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हो? Until unless you have a majority income, you should be seeking products which actually जो give you एक्चुअली profit. मार्जिन से, Margins. एंड वही चीज रिटेलर्स को समझना पड़ेगा एंड वही आगे कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा कि दिस प्रोडक्ट इज गुड. True. आई थिंक मेन गेम रिटेलर्स विल प्ले इन योर बिजनेस. हाँ, देखिए जनरल ट्रेड आज भी कितना भी कोई कॉमर्स आ जाए और कितना भी बड़े रिटेलर का रिटेलर आज भी राजा है, हाँ. क्योंकि वो उस गली में भी अवेलेबल है जहां ब्लिंकिट नहीं जा सकता आज भी. यस, आज भले इन फ्यूचर हो जाएगा, अभी आज- करंट फीड सिनेरियो तो वही है. नहीं वो लोग, क्योंकि देखिए ब्लिंकिट भी और वो डायरेक्ट कस्टमर को कन्विंस भी तो कर रहा है. कोई कस्टमर जाके यही बोलता है एक अच्छा मस्टर्ड ऑयल दे दे यार, सरसों तेल का एक पैकेट दे दो बढ़िया. देयर इज अ ट्रेंड ऑल्सो, हाँ. टेलिंग यू, अ डिपेंडेंसी ऑन जीटी. आपका महीने का पुर्जा बन के जाता है, वो पता है, वो सीधा बांध के आपके यहाँ भेज देते हैं. देयर इज अ क्रेडिट लाइन ऑल्सो गोइंग ऑन इन द मार्केट. लोगों को भैया ठीक है लिख लेना, बाद में जाएगा. ये सब ब्लिंकिट या कोई कॉमर्स नहीं कर सकता अभी. आगे चल के क्या नहीं कर सकता नहीं पता. एज ऑफ नाउ नो, दे कांट. When are we planning for the launch again? मेरा उसका इंक्विजिटिवनेस बहुत रह रहा है कि जो आपने बोला एक मोबाइल बनाएंगे, हाँ, कब हम लोग सोच रहे हैं. एक्चुअली आई एम, क्योंकि इतनी सारी बातें करने के बाद, मस्टर्ड ऑयल के बाद, नाउ आई एम कन्विंस्ड कि चलो ठीक है, टेस्टिंग इज अ वेरी गुड ब्रांड एंड वो कस्टमर्स को भी पता लगना चाहिए. अब व्हेन आर यू प्लानिंग टू लॉन्च दैट ट्रस्ट फैक्टर वाला पार्ट? आई एम नॉट अवेयर एज ऑफ नाउ कि व्हेन आर वी डूइंग इट. वेरी सून. बट यू आर डूइंग. we are on the, we are working on it. क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं. बनारस should be ready for it. Should be mostly. And what are you expecting the outcome? See, we are traction. People actually willing to watch कि एक्शन में होता क्या. And know the awareness. Get aware about. आपका यही एजेंडा है. सेल्स इज नॉट योर एजेंडा. मैं कितना बेच लूं? 10 लोग मेरा तेल लेंगे, 15 लोग लेंगे. I have, अगर मुझे बेचना ही होता, मेरे पास है उसके लिए कस्टमर बेस है. मुझे बेचना नहीं है, मुझे लोगों को बताना है मैं क्या बेच.